Hello students, welcome to this chapter A Letter to God, Standard 10th CBSE. A Letter to God, this chapter is written by G.L. Fuentes, a Mexican writer. And here he had presented us through a description of a faith in God by a common man named Lancho. So here before we go through this chapter, two activities are given on the first page and on the next page. In the first page it is told that what is the way to send money order. First of all, we go to the post office, we meet to the money order counter, then we pay money, and after that form is filled and again given back to the cleric, and after that we get acknowledgement, that is some proof that you have sent money. So second activity is related with the money order form. So all these are blocks which given that what we have to fill in the form. So here the story begins on the next page. Now students, we will read this story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. So whole passage ये हमें क्या बताता है? लेंचो जो घर का मालिक है, whose house is in the entire valley is on the crest of low hill. From this height, और वहाँ से वो रिवर देख सकता है, अपने जो उसकी खेती है उसको देख सकता है, ठीक है. देन फ्लावर्स देख सकता है और वो सबको देख रहा है कि मेरे खेतों में फसल बहुत अच्छी है. द ओनली थिंग, अब उसे बस किस चीज़ की ज़रूरत है? हल्की सी बारिश की. थ्रू आउट द मॉर्निंग, और सुबह से लेंचो ने और कुछ नहीं करा, बस बड़े ध्यान से आसमान को देख रहा है और वो बारिश की सोच अपने मन में लेके बैठा है. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन. उसकी वाइफ शायद आसपास ही कहीं है और उसने भी कहा कि हाँ अब हमें बारिश की थोड़ी ज़रूरत है. द वेमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. So we have seen this dialogue is Lancho, not of his wife. लेंचो ने जैसे अपनी वाइफ को कहा कि वी नीडेड सम वाटर, और उसकी वाइफ ने भी जो उसके पास ही खाना बना रही थी कहा येस गॉड विलिंग कि अब ऐसा ही चाहिए. ओल्डर बॉयज़, उसके जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे वाले हैं वहाँ पास ही खेल रहे हैं, और तब उसकी वाइफ उन सबको खाने के लिए बुलाती है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. प्रिडिक्टेड क्या होता है? पहले ही कुछ भविष्यवाणी कर देनी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसे लेंचो पहले ही कह रहा था कि इस समय उनको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है, तो एट द सेम टाइम बारिश शुरू हो जाती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की साइड से काफ़ी हम कह सकते हैं कि बादल नज़र आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द हिज बॉडी. द मैन मीन्स हियर लेंचो. तो लेंचो इसलिए बाहर गया कि वो बारिश को अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स falling from the sky, they are new coins. The big crops are 10-cent pieces and the little ones are 5.
तो जब वो वापस आया तो बड़ा खुशी से कहने लगा कि ये सिर्फ बारिश ही नहीं है, ये बारिश के फॉर्म में सिक्के गिर रहे हैं। कुछ बड़ी ड्रॉप्स को वो 10 सेंट्स कहता है और छोटे वालों को वो 5 कहता है। मीन्स कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि लेंचो बहुत खुश है। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, he means लेंचो को जैसे थोड़ी सी मन को शांति मिली, खुशी मिली। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड। तो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी फसल को देख रहा है जहाँ पे बारिश पड़ रही है। बट सडनली देन एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड चलती है एंड रेन के साथ साथ हेल स्टोन्स, गड़े भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, अब कैसे लग रहा है जैसे ये कॉइन जो बारिश के ड्रॉप्स हैं क्या हो, सिल्वर कॉइन्स हो। बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन्स, और बच्चे भी बाहर बारिश का आनंद ले रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जो गड़े हैं उनको पकड़ने के लिए बाहर भाग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। मगर गड़े देखकर लेंचो ने क्या कहा, नो नो नो, ये बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासिस क्विकली, कि मैं चाहता हूँ ये सारी बारिश और गड़े यहाँ पे ना पड़े, आगे चले जाएं, हवा के साथ चेंज हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, मगर ऐसा नहीं हुआ। 1 आवर कंटिन्यूसली बारिश पड़ती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, उनके घर पे, गार्डन में, हिल साइड, पूरे वैली में वैसे ही तेज बारिश चलती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और दूर से फील्ड कैसे लग रहा था जैसे सारे फील्ड को साल्ट के साथ कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, इतनी तेज बारिश पड़ी कि सारे पत्ते झड़ गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल पहले लेंचो देख के खुश हो रहा था अब क्या हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सारी डिस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his wife, "A plague of locust would have left more than this." तो उसके बाद जब कोई पत्ता ही नहीं बचा, सारे फ्लावर्स प्लांट से बारिश के कारण हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो गए, और लेंचो सैड हो गया। और वो उसके बाद जब सारा थम गया, बारिश थम गई, तो उसने ऐसे खड़े होके बोल रहा है अपनी वाइफ और बच्चों के साथ कि शायद अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, अगर कोई इंसेक्ट का हमला होता फसल पे तो शायद कुछ बच जाता, मगर अब तो कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो लेंचो बहुत उदास है, उसने कहा अब कुछ बचा ही नहीं है, पूरा साल हम बिना फसल से रहेंगे। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं उदासीन कमेंट है, सैड ग्लूमी मूड में लेंचो ने कहा है कि बहुत दुख की बात है, हमारे पास कुछ नहीं बचा और हम अब क्या कर सकते हैं, हमें पूरा साल भूखे रहना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हियर आर सम क्वेश्चंस, यू मस्ट गो थ्रू दीज बाय योर ओन। इट इज़ सेड दैट व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ही होप्ड फॉर रेन, एंड व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स, बिकॉज ही वाज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉर्न्स, इट इज़ लाइक अ फर्टाइल diet we can say. And how did
रेन चेंज, तब रेन कैसे चेंज होगी, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, तो उसके बाद लेंचो का मानसिक जो हम कह सकते हैं बैलेंस, कैसा क्या फीलिंग्स थी लेंचो की जब हेल स्टॉप हुआ, जब तूफान थम गया। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. All here means all the family members of Lencho, his sons and his wife. So all are in very sad mood. कोई अब आस नहीं बची, सिर्फ वो गॉड को लेकर सोच रहे हैं कि सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो लेंचो ने क्या कहा कि नहीं नहीं अपसेट मत हो, बेशक टोटल लॉस हो गया, फिर भी याद रखना चाहिए कभी भी कोई भूख से नहीं मरता. दैट इज़ वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो उसकी वाइफ ने भी साथ में कहा कि हाँ हाँ सभी ऐसे कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता. ऑल थ्रू दैट नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. तो लेंचो पूरी रात जैसे वो उसे नींद नहीं आ रही और वो एक ही सोच रहा है कि नहीं नहीं भगवान हमारी हेल्प करेगा, एक हमें आस रखनी चाहिए. एंड इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस के कहीं ना कहीं भगवान हमारी मन की बात सुनता है, सारा कुछ देखता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. नो डाउट लेंचो एक हार्ड वर्किंग नॉर्मल स्टैंडर्ड, उसका जो स्टेटस है बहुत ऊंचा नहीं है, नॉर्मल सा एक फार्मर है, बट और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसे ऑक्स के साथ कंपेयर कर रहा है, बट फिर भी हम कह सकते कि वो पढ़ा लिखा है, वो लिख सकता है. द फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेकिंग, जब भी उस तूफान के बाद संडे आया, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड. तो जब नेक्स्ट संडे आया तो वो पोस्ट ऑफिस के लिए चला, उसने एक लेटर लिखा और वो खुद अपने आप मेल बॉक्स में डालने के लिए गया. इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड. और वो क्या था, उसने एक गॉड के एड्रेस पे लेटर लिखा. क्या लिखा उसमें? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो उसने क्या लिखा? हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर मेरी फैमिली की तुम हेल्प नहीं करो कि तो हम भूखे मर जाएंगे इस साल. और हमें क्या चाहिए? 100 pesos. क्यों? क्योंकि हम नई फसल उगा सकें और कुछ खरीद सकें. बिकॉज क्योंकि हमारे सारा खेत जो है वो हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेल्प. एनवेल्प जैसे सपोज ये उसने लेटर लिखा है, तो जो बाहर वाली साइड है जिसके बीच में उसने डाला, जो एक एनवेल्प लिफाफा है, उसके ऊपर उसने क्या लिखा? टू गॉड. एड्रेस किसका लिखा? गॉड का. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टॉन. At the post office he placed a stamp on a letter and dropped it into the mail box. फिर वो पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ से उसने एक स्टैम्प खरीदी और वो उसके ऊपर लगाकर तब उसने मेल बॉक्स में डाल दिया. One of his employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और वहाँ वो हेल्प करता था, उसने वो लेटर निकाला, पढ़ा होगा और बहुत वो ही वॉज इन वेरी वी कैन से हर्ट लाफिंग हर्टली, जैसे बहुत ज़्यादा हंसी आना, क्योंकि उसने पहले कभी देखा ही नहीं था कोई लेटर टू गॉड नाम के एड्रेस पे. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. और पोस्टमैन का करियर में भी उसका बहुत टाइम से वो ये
सेवा कर रहा हो, और उसने कभी भी ऐसी एड्रेस वाला लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल The postmaster, fat and an amiable fellow, also broke out laughing. तो जब पोस्ट मास्टर ने देखा उसका कैसा बताया है उसकी नेचर, एमेबल, वो फ्रेंडली है, अच्छी नेचर का, थोड़ा फैट सा है, और वो भी हंसने लग पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और उसके बाद एकदम वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मीन जैसे ऐसे ऐसे हम कभी कभी किसी चीज़ को नीचे लगाते हैं, उसे टैपिंग कहते हैं। तो वो अपने डेस्क पे वो लेटर को टैप करने लगा एंड कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। ये कमेंट बहुत ही अच्छा है। पोस्ट मास्टर ने कहा कि कितना दृढ़ विश्वास है उस पर्सन का, काश जिसने ये लेटर लिया, काश मेरा भी कहता ऐसा ही कोई फेथ होता भगवान में, और वो इंसान कितना भगवान के क्लोज होगा कि उसने लेटर्स ही गॉड को लिखनी शुरू कर दी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। उसने सोचा कि इस इंसान का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब लेटर खोला तो तब पता चला कि वो कुछ और भी उसकी डिमांड है उस पर्सन की। देन ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. Stuck to his resolution, वो अपने हेल्प करने के इरादे में पक्का रहा, और उसने अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो पार्टनर हैं उनको बुलाया, मीन्स जो उसके पोस्ट ऑफिस में बाकी वर्कर्स हैं। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपनी सैलरी से भी कुछ शेयर दिया और अपने बाकी फ्रेंड से भी डिमांड करी कि ये हमें एक दान समझ के हेल्प करनी चाहिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send farmer only a little more than half. उनके लिए 100 पैसोस इकट्ठे करने इतने आसान नहीं थे, सो इसलिए more than half they had collected. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उन्होंने उस एनवेल्प में पैसे डाले और वो पर्सन को वापस लेटर लिख दिया जिसने गॉड को लेटर लिखा था, और उस पर सिर्फ क्या साइन करे, गॉड के, ओनली गॉड इज रिटन एज ए सेंडर. सो यू विल सी वो दीज क्वेश्चंस. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, किस पे विश्वास था लेंचो का और उसने क्या करा. हु रेड द लेटर एंड व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, किसने लेटर पढ़ा और उसके बाद क्या करा. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट जिस दिन दोबारा संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, उसने लेटर के बारे में पूछा. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन ने खुद वो लेटर लेंचो को दिया और पोस्ट मास्टर जो क्या कर रहा था, जिसने सारा अच्छा काम करा था, वो ऑफिस से अंदर से देख रहा था कि लेंचो का एक्सप्रेशन क्या होगा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. God couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब देखिए लेंचो ने जरा भी लेंचो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, हैरान नहीं हुआ उन पैसों को देखकर, इतना पक्का विश्वास था. बट वो थोड़ा सा एंग्री हो गया जब उसने पैसे काउंट करे. क्यों? क्योंकि तो गॉड ऐसी मिस्टेक कर नहीं सकता और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक.
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट। तो उसी वक्त फिर वो विंडो के पास गया, वहाँ से इंक मांगी, पेपर मांगा, और पब्लिक राइटिंग टेबल मीन वहाँ पे चेयर्स टेबल्स लगी होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ कहीं बैठ गया और उसने लेटर लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा था। caused by the effort he had to make to express his ideas। ऐसे लग रहा था जब वो लेटर लिख रहा है तो वो बड़ा आराम से नहीं लिख रहा, बड़ा गुस्से से वर्ड्स ढूंढ रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope। तब वो लेटर उसने लिखा, विंडो के पास गया, स्टैंप खरीदी और उसने एनवेलप के ऊपर स्टैंप लगा दी। Then affixed to the envelope with a blow of his fist, और ऐसे उसने स्टैंप को पकड़ा और दोबारा अपने हाथ से ऐसे ब्लो करा और एनवेलप के ऊपर लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे वो मेल बॉक्स में लेटर डाल कर गया, उसी वक्त पोस्ट मास्टर ने उसको खोला। इट सेड, और उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी। तो उसने क्या कहा, जो पैसों की मैंने डिमांड करी थी उसमें से सिर्फ मुझे कितने मिले हैं, 70 पैसों। सेंड मी द रेस्ट, जो रहते हैं वो भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, सिग्नेचर करे लेंचो के साथ। तो कहता मगर अब मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजने, वाई कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसने क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स, कि वो सभी बहुत बुरे हैं। क्रुक्स जिसे हम नेगेटिव क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, उन सब ने उसका फेथ तोड़ा है। और शायद लेंचो के अकॉर्डिंगली उसने 100 पैसों मांगे थे और 70 ही गॉट, एंड जो 30 हैं दे आर बीइंग टेकन बाय द एम्प्लॉयज़। तो इसलिए उसने ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करी। उसके अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वो बहुत ही मकार हैं, वो बहुत ही डिसलॉयल हैं, डिसऑनेस्ट हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चंस आर हेयर। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। जब लेंचो को लेटर मिला पैसों के साथ तो वो सरप्राइज हुआ। बट मेड हिम एंग्री, और वो निराश क्यों हुआ। बट वी हैव सीन इन द होल चैप्टर लेंचो हु हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, बट ही could not give good judgment at the end of the chapter. No doubt maybe he had some experience that he met with people who might be dishonest, but these people of the post office, they are very honest people, but उसके accordingly वो क्या हैं, bunch of crooks। तो कहानी जो है थोड़ी आयरनिक हो जाती है, यहाँ पे आयरनी शो होती है कि जो पोस्ट मास्टर ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।